on behalf of MRL community, we welcome you to a very exciting program on a different type of topic today. Normally, we have been having our health talks, but they're predominantly on the allopathy. But today we have a very interesting talk on the very old and established school of medicine, and that's homeopathy. So on this topic, we'll be discussing the various issues and aspects related to homeopathy and primarily how it is beneficial for all of us. I must thank our member Neela Kulkarni madam, who has been kind enough to get Dr. Anil Gosavi for this particular talk. He is her brother, and when she talked about Dr. Anil Gosavi, we were too happy to have him with us. Neela madam, can you please take it forward, introduce Dr. Anil Gosavi, and please take it forward. Yes, sir. Yes, sir. I will introduce Dr. Anil. Dr. Anil is MD in homeopathy, and currently he is professor and head of the department in Motiwala Homeopathic Medical College, Nasik. He is practicing homeopathy for the last 30 years. He is an animal rights activist. He is also a Hindustani classical music enthusiast. He has appeared on many TV and radio shows for promoting homeopathy. He is also associated with the Indian Red Cross and St. John's Ambulance Association. So now I request sir to say a few words. Dr. Anil Gosavi, you can start session, sir. Yes. So Yes. Good afternoon, everybody. And it is indeed a very revered pleasure for me to be able to interact with such wonderful people. And I hope that this interaction goes ahead in long way in the time. And we become thick friends with this lecture, whatever little that I know that I am going to share with you. I hope we all would become thick friends in the future. So with this note, I kickstart with the lecture, with my presentation. We are talking of homeopathy. Now, we will start from where we are born. Okay. Can anybody, now I would ask Mrs. Tell me when her son was born, the elder son was born. Is she there? Raju. Mrs. Nirani, tell me when your son was born, the in elder one. 1985, Nasik. What was the birth date? 5th November 1985. 5 नवंबर 1980 को अभिजीत का जन्म हुआ. सही बात है? सही बात है. गलत. ये बात गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ये जो तारीख आप बता रही हैं, इसके 9 महीने पहले अभिजीत पैदा हुआ है. He was born 9 months prior to what date you are telling. Is everybody with me? Agreed? Yes. हम जो माँ के गर्भ में अपना समय व्यतीत करते हैं 9 महीने का, वो हम व्यवहार में अपने कामकाज में इसका उपयोग नहीं करते हैं. तो हमको स्टार्ट वहां करना पड़ेगा, हमारी शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी कि जब उसकी एक्चुअली पैदाइश हुई, अभिजीत की पैदाइश हुई, तो 9 महीने पहले क्या स्थिति हुई. तो एक पेशी आई माँ की तरफ से, एक पेशी आई पिता की तरफ. सिंगल सेल. ये जो सिंगल सेल है, एक पेशी है, इस पेशी में से पूरे प्रकृति की उत्पत्ति है. एग्रीड? बराबर है. यानी जो ओरिजिनल ये सेल है, ये जो कोशिकाएं बनी है, वो उसकी जेरोक्स कॉपी है. एक्सेप्टेड और नॉट? आर यू विथ मी? ये हमारे प्रकृति में जो कितने सेल्स रहते हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हाँ,
Yeah, sir would give you share screen. Yeah. Is the screen visible? It has just Yes. started. Yeah, visible. Concept of Yeah. totality. Yeah. I'll just go move on, try and as well. So what happens with the life is that we are born with this one single cell, where one cell comes from the mother and one cell comes from the father. These two cells unite to form one single cell, what is called as a zygote. अभी ये जो विधि है, ये सभी प्राणियों के, जितने भी पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, उनके लिए ये यही विधि से जन्म होता है। अभी ये जो zygote है, इस zygote में से चूटी के साइज का जानवर भी पैदा होता है. An ant is born of one single zygote, and eventually when the ant grows to an adulthood, it is a cluster of about 1000 to 1200 cells. All right, 1000 से 1200 सेल्स की चूटी रहती है एन एंट. वही एक सेल से कॉकरोच भी पैदा होता है. कॉकरोच जो है वो एक सेल से अपनी जिंदगी शुरू करता है, और जब एडल्ट प्रौढ़ावस्था में आता है तब उसके बदन में लगभग 10,000 से 12,000 सेल्स होते हैं. ठीक है. एंड एडल्ट ह्यूमन, अगर आप पूरे वयस्क आदमी के अगर ये करें, अप्रोक्सीमेटली आप बताएं कितने सेल्स होंगे. अगर कॉकरोच में 10,000 से 12,000 सेल्स है, तो पूरे वयस्क के इंसान में लगभग कितने सेल्स, हम कितने सेल के प्राणी, आप कोई बता सकता है? एनीबडी, प्लीज इंटरैक्ट. हम लगभग कितने सेल का प्राणी है? तो अंदाजा ऐसा है, लगभग एन रफ एस्टिमेट ऑफ आवर सेल्स इज अप्रोक्सीमेटली this much to this much, about 75 trillion to 100 trillion cells. 75 के ऊपर 13 शून्य या 100 के ऊपर 13 शून्य, इतने सेल के हम प्राणी हैं. Are you with me? I'm not getting you. Are the people with me? Hello, is everybody with me? और राजू तू कर कंटिन्यू. सगळे आहेत because what Yes, happens yes. is, if I don't get connected, I lose my this thing. Because नहीं, I'm नहीं, we used cannot to talk to you. live audiences. We Okay. cannot talk to you. You just continue. Fantastic. अभी ये जो सेल्स है, इस सेल से हम we are born of that particular entity. Now, अच्छा, one single cell and the entire constitution is born of one single cell. अभी हमारे प्रकृति में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, ये सब एक ही प्रकृति की उत्पत्ति है, एक ही सेल की उत्पत्ति है. अभी होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कंप्यूटर के तरीके से काम करता है. रहते हैं the hardware part and the software part. Everybody, I'm sure is aware of this. A computer is two entities, the hardware part and the software part. Same is the case with the human constitution. We also are, a combination of two aspects, the hardware part and the software. The hardware part is the body and the software part is the mind. Mind जो है, it is the software control of the entire constitution. अभी क्या होता है कि जब आदमी, जो हमारी प्रकृति है, जैसा हमारा मन काम करता है, इसी तरीके से हमारा बदन काम करता है. मान लीजिए जो हमारे मन की अवस्था अभी है, वही हमारे बदन की अवस्था होती है. मान लीजिए कि कोई घर गृहस्थी में छोटा मोटा झगड़ा हुआ. झगड़े में क्या होता है कि जो झगड़ा होने के बाद मन में जो गुस्सा आता है, वो इमीडिएट में दिखाई देना शुरू होता है. Instantaneously, it is a knee jerk reaction. गुस्से की कंडीशन में आपकी और हमारी प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं, जरा गौर से देखिए. हाथ पैर की कपकपी होती है, चमड़ी को पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, गला सूखने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चेहरे के हावभाव बदलते हैं, हस्ताक्षर बदलता है, चलने की स्टाइल बदलती है, कुछ लोगों का सरदर्द होने लगता है, लेडीज आंखें लाल होने लगती है, लेडीज गो इनटू मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स.
एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक ही गुस्सा बदन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। जिस भाग को जो भाषा आती है उसी में उस गुस्से का एक्सप्रेशन है। जैसे आपकी चमड़ी है, आपकी चमड़ी है तो उसका गुस्सा प्रदर्शित करने का तरीका है कि उसको पसीना ही आएगा, उसको दूसरा कुछ नहीं आता है। जैसे मैंने कहा कि गुस्से की कंडीशन जो है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है, वही चीज आपके बीमारी के लिए लागू है। बीमारी जब आती है तब पूरे बदन उसमें इन्वॉल्व होता है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व इन अ स्टेट ऑफ डिसीज। तो बीमारी की कंडीशन में होता क्या है कि जिस पार्ट को जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में वो बीमारी कैसी है वो दिखाई देने का तरीका बदलता है। जैसे हरे जानवर की बोलने की स्टाइल या उस लैंग्वेज अलग अलग है। समझो कुत्ते को भूख लगी है तो भौंक के ही बोलेगा कि उसको भूख लगी है, या कुत्ते को गुस्सा है तो भौंक के बोले। वो बिल्ली की अगर बात करें तो बिल्ली भौंकेगी नहीं, वो म्याऊं म्याऊं करेगी, क्योंकि उनकी भाषाएं अलग अलग है। जिसको जो भाषा आती है उसी में वो बोलेगा। इसी तरीके से हमारे बदन के जो कलपुर्जे हैं उनकी हर एक की भाषा अलग अलग है। तो बीमारी जब आती है तो एक साथ एक बदन में एक ही बीमारी होती है, केवल ओनली वन सिंगल बीमारी। हमारे बदन में 2, 5, 10 और 15 बीमारियां कभी हो ही नहीं सकती। वो बीमारी बदन के किस हिस्से में है इसके हिसाब से उसके दिखने का तरीका बदलता है। मान लीजिए आपको चमड़ी की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है। त्वचा की बीमारी त्वचा कैसे बोले कि बीमारी है? त्वचा को क्या जुलाब होंगे या छींके आएंगी? बोलिए तो क्या होगा? तो त्वचा को ना छींके आएंगी ना त्वचा को जुलाब होंगे। त्वचा की भाषा है खुजली की। इसलिए त्वचा की जो 90% जो बीमारियां है ये सब खुजली के रिलेटेड है। उसको शास्त्र ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसको बोलते हैं एक्जिमा, किसी को बोलते हैं सोरियासिस, किसी को बोलते हैं पेम्फिगस, किसी को बोलते हैं डर्मेटाइटिस, किसी को बोलते हैं जो भी है उसका नाम साइंस ने अलग अलग दिया है। आता है तो खुजली के हिसाब से ही लेके आता है। 90% चमड़ी की बीमारियां ये खुजली की होती है। अभी जो बीमारी खुजली के हिसाब से चमड़ी में दिखाई दे वो अगर नाक में गई तो नाक में उसका नतीजा होगा छींके या जुकाम। नाक को जुकाम ही हो सकता है। वही अगर फेफड़ों में गई तो फेफड़ों में उसका दमे के हिसाब से दिखाई देगा। या कोरोना भी आजकल का हॉट टॉपिक है कोरोना, वो फेफड़ों की बीमारी है इसलिए सांस के प्रॉब्लम ही होंगे। वही बीमारी अगर पेट में गई तो एसिडिटी हो जाएगी, आंतड़ियों में गई तो जुलाब के हिसाब से दिखाई देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम अक्सर क्या करते हैं, हम लोग क्या पकड़ते हैं कि बीमारी एक पार्ट को लेके पकड़ते हैं, इसलिए बीमारी ने अगर जगह बदली तो हम डायरेक्ट डॉक्टर बदलते हैं। पेट के डॉक्टर कान का देखते नहीं, कान के डॉक्टर किडनी का देखते नहीं, किडनी के डॉक्टर स्प्लीन का देखते नहीं, वो इसका देखता नहीं, वो उसका देखता नहीं, वो उसका देखता। इसके हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन बना है। एलोपैथी का शास्त्र जो है वो बना है इसके सब, वो उनकी जगह पे सही है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो गलत है या हम सही है, ये कहने का उसमें तात्पर्य नहीं है। कहने की बात यह है कि उनका देखने का नजरिया अलग है। होम्योपैथी में चूंकि ये देखा जाता है कि बीमारी एक है, उसका नतीजा बदन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो रहा है, तो उस बीमारी को कैसे निकाला जाए इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। या स्ट्रेस इसी के ऊपर है कि आप निरोगी हो। अभी कैसा है, बीमारी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में डाल दिया जा सकता है। मान लीजिए एक पार्ट को आप किसी तरीके से ट्रीट करो तो वही बीमारी और 4 पार्ट में घुस सकती है और ज्यादा गंभीर बन सकती है लॉन्ग टर्म में। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो बीमारी जहां से शुरुआत है, उगम स्थान, वो उसको निकाला जाए। अभी पूछिए कुछ बीमारी का उगम स्थान क्या है, तो अक्सर देखा जाए कि 90% बीमारियां इनकी शुरुआत है मन की अवस्था से। मन की अवस्था से, जैसे मैंने कहा कि जो भगवत गीता में बोला गया है कि भगवत गीता में कहा गया है कि बीमारी की शुरुआत कहां से, तो भगवत गीता में कहा गया है कि ये शुरुआत होती है षड रिपुओं से। भगवत गीता में 13 चीजों का उल्लेख है। षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, शोक, भय, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, घृणा, असूया, माया और चिंता। अभी जो पहली बात है काम, काम का मतलब सेक्सुअल बिहेवियर नहीं,
केवल सेक्सुअल बिहेवियर नहीं, संस्कृत में अलग एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स है। तो काम का मतलब ये भी कि अतिरेक, कोई भी चीज का आप अतिरेक करो तो वो बीमारी का रूप धारण करता है। तो इसलिए काम की बात एक छोड़ दे, बाकी जो एंटिटीज है वो सब डिस्टॉर्टेड स्टेट्स ऑफ माइंड है। क्रोध, लोभ, शोक, भय, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, घृणा, असूया, माया, चिंता। अभी जो तीव्रता से अगर बीमारी आती है, तीव्रता अगर मन की अवस्था से होती है, तो जो कल्परुषा उस वक्त कमजोर है वो बीमार पड़ेगा और अपने इसमें उस बीमारी का एहसास कराना शुरू कर देगा। अभी होता क्या है कि एक ही बीमारी है, उसको होम्योपैथी में दवा एक ही होती है। होम्योपैथी में 5, 6 और 10 दवा नहीं, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं एलोपैथी में देखते हैं कि पन्ना भर मेडिसिन दिया जाता है। पन्ना भर मेडिसिन है, आप एक सिम्टम बोलो उसके और 3 दवा ऐड होती रहती है। कई बार मैंने देखा लोगों को लिटरल वर्चुअली मेडिकल स्टोर्स घर में लेके बैठते हैं, सुबह को एक, दोपहर को एक, शाम को एक। होम्योपैथी में केवल एक दवा है, आपकी जो प्राण शक्ति है उस I think we have lost the audio. Sir, उनका bandwidth थोड़ा low है. There is a lag because of that. He'll come, get back. I'll just call and see. Yeah, please go ahead. Yes, sir, he's trying, he's coming. He's coming. Just now admitted it. Okay. Am I with you? Yes, sir. Very much. Yes. I'll just start to show you a case. I'll start to show you a case how it makes. Is the screen visible? Yeah. Screen visible, Harry? Yes. Visible. I'll show you this case of a small girl. इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची को देखिए। ऑल राइट, ये दिख रही है? नहीं, she is paused. just a second. ये आ गया। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे। नका खिडकी नका डासांसाठी बंद केली डासांसाठी बंद केली
मर्दासन साठी ओके ओके। एबा इस लड़की को 5 बीमारियां लेके आए थे। इसको स्किन का प्रॉब्लम था, इसको फेफड़ों का प्रॉब्लम था, इसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम, इसको जॉइंट्स खुल नहीं रहे थे, इसके जॉइंट्स खुल नहीं रहे थे। ये देखिए, इसको फेफड़ों का प्रॉब्लम था, पेट का प्रॉब्लम, और उसके पेशाब की जगह में वो इन्फेक्शन इस कदर पहुंच गया था कि ये पेशाब करने के टाइम बहुत ज्यादा बेचारी कह रही थी, क्या कहिए कि भाई इतना तकलीफ था। अलग अलग डॉक्टर उसको लगभग 20 गोलियां रोज चालू थी, रोज इंजेक्शन मारते थे। इसकी ट्रीटमेंट नासिक के सब बड़े स्पेशलिस्ट हो गए, बॉम्बे पुणे हो गया, बेंगलोर हैदराबाद हो गया, टोक्यो और पेरिस को भी लेके उसको दिखा के लाए थे। वहां पे कहा गया कि बीमारी सिर्फ स्टीरॉइड से कंट्रोल होगी, क्योर नहीं होगी, ऐसा बोला गया। इट वॉज टोल्ड दैट शी विल नॉट बी क्योर्ड ऑफ दिस डिसीज बट विल ऑलवेज रिमेन फॉर दैट मैटर सिक थ्रू आउट हर लाइफ इन सम और द अदर वे। तो ये जो है, ये जो आई, ये बहुत भयानक स्थिति थी इसकी, बहुत ही भयानक स्थिति थी। अभी क्या हुआ, जब इसको ट्रीट किया गया, ट्रीटमेंट शुरू की, तब उसका एक ही पॉइंट ऐसा पकड़ में लिया कि जो उसकी एक जो दवा थी उसको ढूंढने में सब अपना ये लगाया, और जब उसकी दवा एग्जैक्ट मिल गई तो आगे क्या हुआ, आगे की स्क्रीन में हम देखेंगे। ये लगभग 3 महीने के बाद इस लड़की की फिल्म ली गई है। उसको 5 पैसे का मलहम नहीं लगाया, 5 पैसे का विटामिन प्रोटीन नहीं दिया, कोई खून नहीं तपासा, पेशाब नहीं तपासे, उसका कुछ भी टेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। दिस इज आफ्टर 3 months फ्रॉम स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, नॉट 1 ड्रॉप ऑफ ऑइंटमेंट वाज यूज्ड फॉर दिस गर्ल एट ऑल। ये जो सफेद उसके जॉइंट्स के ऊपर जो सफेद जो पिगमेंटेशन दिखता है, दीज वेर द हीलिंग लीजन्स ऑफ सोरियासिस, हीलिंग लीजन्स ऑफ सोरियासिस। और इसके बाद इमीडिएटली विल गो टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद लगभग 1 साल के बाद की इसकी फिल्म ली गई है। दिस इज आफ्टर 1 year ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। दिस इज द सेम गर्ल आफ्टर 1 year ऑफ ट्रीटमेंट, just one single medicine with no other intervention of any other medicine, this result was achieved। ये बोलो नहीं शकत। आप मेरे साथ हैं? Is everybody with me? Yes, yes, we are with you. You continue. Yeah, you are the films visible to you? Yes, yes. Yes, yes, okay, that will be fine. We go on to see yet another case. We go on to see yet another case. ये केस आई, इसको बोलते हैं टीनिया सर्किटेटा। 6 साल से ये औरत बीमार थी। For 6 long years, this lady was suffering from this condition, what is called as टीनिया सर्किटेटा. There is no known cure for this in modern medicine, और ये उसको स्टेरॉइड टॉपिकल ऑइंटमेंट्स देके इसको क्योर किया जाता है। टीनिया सर्किटेटा, 6 साल से ये औरत बीमार थी। ये स्कूल में टीचर है और दिन भर काम करती थी और रात भर खुजाती थी। दिन को नींद थी, रात को नींद थी। इसको बहुत ही खराब कंडीशन में आई थी। From practically every single part of the body was affected. When the lesions become circular, ये circular lesion होना, ये शास्त्र बोलता है कि कुछ it indicates something very wrong. लीजन सर्कुलर ना होने चाहिए, इसके तो एग्जैक्ट सर्कुलर हो गए। 1 मिनट, जहां जहां पे मुमकिन है वहां वहां पे ये बीमारियां उसको फैल चुकी थी। Am I audible and visible to you all? Yes, yes, you carry on. Yes, okay. I just wanted to confirm whether everybody is with me or not. Okay.
ना इसके बाद क्या हुआ, इस औरत को भी कोई 5 पैसे का मलम नहीं लगाए, विटामिन प्रोटीन नहीं दिया, कोई खून नहीं तपासे, पेशाब नहीं तपासे, कुछ भी नहीं. दिस इज आफ्टर अबाउट 4.5 months ऑफ ट्रीटमेंट. 4 महीने के बाद की ट्रीटमेंट है. कोई नामो निशान नहीं. इसके बाद ये औरत उसके बाद कभी, अभी भी फॉलोअप में है, इनकी मुलाकात होते रहती है. अभी कहती है कि उनमें कोई बीमारी बची नहीं है. इनके इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम थे, बाकी के सब क्योर हो गए एक ही दवा से, एक ही दवा से. हम लोग और एक केस देख लेते हैं फट से. तीसरी एक और केस देख लेते हैं. ये एक ल्यूकोडर्मा की केस मैं आपको दिखाऊंगा. ये जिसको कोड बोलते हैं ल्यूकोडर्मा. पूरी सफेद हो चुकी थी. इसकी बच्चों की शादी हो पाना मुश्किल हो रहा था. शी कुड नॉट गेट डॉटर्स मैरिड. बड़ी लड़की हो गई 31 साल की, छोटी 28 साल की. लेकिन इसको देखते थे उसके बेचारी की लड़कियां रिजेक्ट हो जाती थी. बहुत कोशिश किए. ये इसका 4 साल तक चला. उसका हम लेटेस्ट वीडियो, अभी इसके बाद का मैं लेटेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं फॉर दिस लेडी. द सेम लेडी आफ्टर अबाउट 4.5 years, उसका जो एग्जैक्ट पिगमेंट आना चाहिए, कंप्यूटर जिसको बोलते हैं ना, कंप्यूटर मैचिंग कलर, वी कुड ब्रिंग ऑन टू दिस लेवल. उसके बाद क्या हुआ, बीच के दिनों में इसके बच्चियों की शादी हो गई. सो शी लॉस्ट इंटरेस्ट एंड शी स्टॉप्ड ट्रीटमेंट. She said now, I mean, the reason for continuing of the treatment was gone. उसकी बेटियों की शादी थी जिसके लिए उसको करना था, वो ये हो गया तो उसने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया. This is possible, very much possible in this homeopathy. It is extremely possible that you can cure these conditions to this level. May I throw open the session for question and answers? Later on, as we go ahead, we'll see a few cases also. But in the meantime, if you have questions to be asked, I'll be more than delighted to answer you. You continue, I think, with the lecture. Lastly, we will keep. I have continued because no, you can ask in between. I have a few more cases to show. But in case you have any questions, you may please ask. I'll be happy to answer you. किसी को कुछ पूछना है या हम आगे बढ़ें? हेलो सर. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. यस डॉक्टर साहब, अभी जो ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसमें होम्योपैथ कहाँ तक सक्सेसफुल है? देखिए, 2 चीजों से इन्फेक्शन, अभी ये इन्फेक्शस डिसीज एक प्रकार की सर्दी है. अभी हो क्या रहा है, 2 किस्म से इन्फेक्शंस होते हैं. पहली बात, अगर टिश्यू की इम्यूनिटी कम हो, टिश्यू अपनी कमजोर हो, तो वो अटैक, ये पहली स्थिति है जिसमें इन्फेक्शन होते हैं. दूसरी स्थिति जिसको विरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो. ये जो वायरस जो आया है वो चाइना से कहते हैं, इन्होंने ये लिबरेट वायरस छोड़ा हुआ है. इसकी वोरासिटी इतनी भयंकर है, ये भूखे शेर है. ये इम्यूनिटी को देखते नहीं, ये डायरेक्टली अपने फेफड़ों के ऊपर अटैक करते हैं. अभी फॉर्चुनेटली होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसकी दवा है. हम होम्योपैथी को इस वायरस के हिसाब से देखते नहीं है. इसके जो लक्षण आते हैं अब 90% लोगों में, वो होते हैं कि वो एक होता है कि आपके सांस लेने में आपको परेशानी होती है. तो इस पॉइंट को लेते, इट क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड. इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड. अब ये ऑक्सीडेशन को आपको नॉर्मलाइज करना हो,
तो हमको चाहिए कि ऐसी दवा ऑक्सीडेशन को परफेक्ट करे। तो एक होम्योपैथी में दवा है कार्बोवेज, वेजिटेबल चारकोल से बनी हुई कार्बोवेज, आप चाहिए तो लिख के लिए CARBOVEG, कार्बोवेज। उसका 30 पावर का लेके आए और ये आप एक 8 दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं। उससे उनके ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छी तरीके से ये हो जाएगा। जिसकी जो वजह होती है, ये जो वायरस है, ये एक प्रकार का जुकाम है, इट इज नथिंग मोर देन अ कॉमन कोल्ड। ये एक मेडिसिन है। और दूसरा एक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा नाम की एक ये है दवा है, वो मदर टिंचर फॉर्म में उसका लिक्विड मिलता है बाजार में 160 रुपीज, बहुत सस्ता है, 160 रुपीज पर आउंस। उसकी 10-10 बूंदे अगर पानी में डाल के पेशेंट को सुबह शाम पिलाया जाए तो 3 या 4 दिन में उनकी लेवल 80-90 के ऊपर आ जाती है, 90, 90, 94, 95 तक आ जाती है, ऐसा अनुभव है। सर तो अगर कहिए सर, अगर जैसे अभी चलिए जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अभी प्रेग्नेंट लेडीज अगर ये हो जा रहा है कोविड, तो उनके लिए तो कोई दवाई एलोपैथ में है ही नहीं। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। प्रेगनेंसी जो है ये फिजियोलॉजिकल, जो कुदरती चीज है। इसमें प्रेगनेंसी के हिसाब से उसमें कोई अलग से कोई सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि कुदरती फिनोमेना है। जो चीज नॉर्मल आदमी को वही प्रेग्नेंट वुमन को है। और होम्योपैथी के मेडिसिन ऐसे हैं जो कोई भी या प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी उसके गलत असरात नहीं है। It does not have any untoward or side effect on any other organ of the constitution. It will only have a capacity to cure the disease. डिसीज को, बीमारी को कैसे ठीक करें, इसी को सिर्फ देखा जाता है। ये दूसरा कुछ इसका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और होम्योपैथी में अभी तक कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिए कभी। हाँ कहिए। और सर जो ये इस समय पेंडेमिक के टाइम पे जो सिवियरिटी आ रही है, लोगों को बहुत कफिंग होता है, उसके लिए होम्योपैथ में कुछ दवाई है? क्या होता है? जैसे लंग्स में इंफेक्शन हो गया, उसके बाद उनको बहुत खांसी होती है, जो 7th 8th डे जो आता है ना, जब वो तो बहुत खांसी, मतलब ब्रीथ लेने में भी उनको खांसी होती है। मैं वही कह रहा हूँ, ये बीमारी जो है, ये बीमारी पूरी तरीके से श्वास नलिका की है, इसलिए सब श्वास नलिका के ही सिम्टम आएंगे। खांसी उसी का एक प्रकार है। हम क्या करते हैं, इसको एलोपैथी, अनफॉर्चुनेटली उसको दवा जो है एलोपैथी में अभी तक वो खुद बोलते हैं कि इसको दवा नहीं है उनके पास, ना रेमडेसिविर उसकी दवा है, ना उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट एक बाहर से दिया गया है टू कीप द सिस्टम्स गोइंग, दैट्स ऑल, टू कीप द सिस्टम गोइंग, उतना ही उसका रोल है। हमको चाहिए कि एलोपैथी को देखने के बजाय होम्योपैथी और आयुर्वेद का इसमें भरपूर प्रयोग करें, ताकि लोगों का जो आज जो जिस तरीके से मर रहे लोग, ये सब अब रोक सकते हैं। इसको रोका जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद का साइंस जो है, इसमें एक्चुअली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, 3500 साल का उसके पीछे रिसर्च का उनके पीछे बैकअप है, 3.5 इयर्स का रिसर्च है आयुर्वेद के पीछे। तो ये ऑलरेडी टाइम टेस्टेड दवाइयां हैं। इसके पहले भी ऐसे इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी में बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं। तो आपको एक बात देखना है कि दिस इज द सेफेस्ट पॉसिबल सिस्टम अवेलेबल। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, और हम आगे एक दो और अच्छे केसेस दिखाएंगे। सर मेरे को मुझे कुछ पूछना है। Please go ahead. Myself, sir. Hello. Please go ahead, madam. Yes, sir. I wanted to ask you, homeopathic में ना it takes long time to get cured. तो क्या is it true? नहीं, it is absolute, it is in fact contrary. जो चीज 20-25 साल से है वो 1 साल में ठीक होती है, तो आप क्या कहेंगे इसको? 25 साल आपने ट्रीटमेंट करके देख लिया, 20-25 साल आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और 25 साल में ठीक नहीं, और होम्योपैथी में 1 साल के बाद पूरी बीमारी चली गई, आप क्या कहेंगे? फास्ट कहेंगे या स्लो कहेंगे? ओके, नहीं ऐसा सुना, ऐसा आई हर्ड लाइक ये मिसकंसेप्शन है। एलोपैथी में क्या होता है आपको मैं बोलता हूँ, हम ये क्यों सोचते हैं, आपका सर दर्द हो रहा है सिंपल कोई मामूली वजह से, आप एस्पिरिन लेते 15 मिनट में ठीक हो जाता है, लेकिन
एक नींद आप ले लो या कॉफी पी लो तो भी वो ठीक होता है, उसको दवा लेने की जरूरत नहीं। Okay. होम्योपैथी में अगर 20 साल पुराना हेडेक कोई है, 20 साल पुराना हेडेक अगर 1 साल में ठीक हो गया, इसको आप फास्ट कहेंगे कि स्लो कहेंगे? रिलेटिव टाइम दैट इट टेक्स इज फार टू लेस। उसके बाद उस आदमी को बीमारी रहती ही नहीं, दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट आगे करने की। Okay. Okay. Thank you. Thank you. इसके Yeah. अलावा किसी को कुछ पूछना है भाई? Excuse me, sir. Can you please repeat the names of those two medicines that you have told? एस्पिडोस्पर्मा एंड कार्बोवेज। कार्बोवेज का पावर 30 विल बी फाइन, 30 पावर। परचेस 2 DRAM pills, DRAM, DRAM, 2 DRAM pills. Astrofarma. सर एक मिनट सर, एस्पिडोस्पर्मा, एस्पिडो, एस्पिडोस्पर्मा। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ बोलिए। you can give the names of the medicine to Neela. If you can send, the Neela will send you the group. Yes, I that think will be. Otherwise, we are just typing over here for everybody's benefit. Yes, yes. Are you getting it? डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी देखिए, ये खास करके कोविड के अंदर एक होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की गई थी जिसका नाम है आर्सेनिका आल्बम 30। तो अभी इसका पहले बताया था गया था कि 1 हफ्ते में आपने एक बार लेनी है और वो कुछ 1 मंथ का बताया गया था। अगर मान लीजिए बीच में स्टॉप हो गया है या पूरा कोर्स कर लिया था, इज देयर एनी हार्डशिप, इज देयर एनी प्रॉब्लम इफ वी कंटिन्यू इट? See, there is no harm in taking a medicine, but it will not benefit either. अच्छा ओके, तो मतलब उसका काम 1 महीने के अंदर हो गया है पूरा? नहीं हो गया उसका। कोई वैसा भी सच पूछो तो दिस वाज मेड बाय गॉड alone knows where they got this from, लेकिन इतना उसका सर्कुलेट कर दिया इन लोगों ने कि every single person started to take it randomly. ये होम्योपैथी रैंडमली टेकिंग जैसे नहीं। अगर मैंने कार्बोवेज भी आपको बोला है तो कार्बोवेज उसी कंडीशन में लेना है व्हेन द ब्लड इज नॉट ऑक्सीजनेटेड परफेक्टली, द कंडीशन शुड बी दैट। ऑलराइट। आर्सेनिक का क्या हुआ? आर्सेनिक उन्होंने पूरे सोसाइटी को रैम्पटली दे दिया और उसके क्या कहिए, अच्छा होने के बजाय बुरा। फॉर्चुनेटली कुछ बुरा नहीं होता उसमें, लेकिन अच्छा भी हुआ नहीं, ऐसी बात हो गई। और कुछ without prescription we cannot take this medicine, na? Yeah, you can take without prescription also. This is a very safe medicine. I mean, these are trouble times for all of us. So people usually cooperate. The pharmacists also do cooperate with that. Okay. कैसा है? Actually, the ideal situation will be to consult a proper doctor. That's better. To consult a proper doctor, क्योंकि क्या लॉक एंड कीप है। हमारा धंधा कैसे, हमको मैं बोलता हूँ, हम चाबी बनाने के लिए जाते हैं ताले वाले के पास, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे घर के ताले की चाबी बना के दो। वो क्या बोलता है, घर का ताला लेके आओ। वो ताले में एक पट्टी जैसी डालता है, कुछ करता है, कुछ घिसता है, बराबर है। घिसने का तुमको हमको पता नहीं, लेकिन तीसरे में एग्जैक्ट चाबी बनती है। ओके, यस। मेरा धंधा और उनका धंधा लगभग एक जैसा है। ओके। आपके मन की अवस्था और आपके शरीर की अवस्था है, हम स्टडी करते हैं और उसमें मैच करते हैं कि लगभग 3000 दवाओं में से आपकी चाबी कौन सी है। ये चाबी ढूंढने का काम मेरा है। ओके। बात समझिए। इसलिए भाई 4 लोगों को फायदा हुआ खांसी के लिए, वो ऐसा होम्योपैथी में नहीं है। नित्या दीक्षित या ज्योति रामदास या शशिबाला रस्तोगी, ऐसे लोगों को हाथ सामने रख के वो किया जाता है। आपकी दवा कौन सी है ढूंढना जरूरी है। ये नहीं कि खांसी के लिए कौन सी दवा है, खांसी के लिए कोई दवा नहीं, दमे के लिए कोई, कोविड के लिए कोई दवा नहीं, लेकिन जो पेशेंट बीमार है उस पेशेंट के लिए ये दवा है। आप बात को समझिए। यस। इसलिए इसमें ये जो बाय एंड लार्ज सबको, सब पूरे पॉपुलेशन को आर्सेनिक दे दिया गया, ये गलत है हमारे हिसाब से। ये हमारे हिसाब से गलत है। ओके। और कोई है, और कोई पूछना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर। यस, थैंक यू मिसेस दीक्षित, थैंक यू। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। मैं सर पार्के मोदी। या मोदी जी बोलिए। ये सीरियोसिस के लिए क्या फिजिकली आपसे मिलना जरूरी है? जी एक बार देखिए, आइडियल सिचुएशन वुड बी एक बार। अभी ये कोविड कंडीशंस में कहाँ आपको बुलाएंगे, तो हम लोग एक कर सकते हैं, वी विल मेक अ व्हाट्सएप कॉल टू यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू फॉर यू।
सोरियासिस वेरी कर, मैं सोरियासिस के 50 केस मेरे पास है, लेकिन समय की पाबंदी है, इसके लिए मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता अभी, वरना रात भर बैठो तो मैं आई व्हाट अबाउट 50 ऑड केसेस क्योर्ड केसेस जो है सोरियासिस के, तो मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। इट्स अ वेरी क्यूरेबल प्रॉब्लम, ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। दूसरा सर, मुझे थायराइड था, हाँ, एलोपैथी से पहले टेस्ट कराया, पता चला, होम्योपैथी के एक डॉक्टर उनके पास गए, बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात जी है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में कोई दवाई नहीं है, थायरोडेक्सिन खाओ और मजे में करो। मैं एक बात बोलता हूँ, ये शायद ये इस तरीके से क्या, अगर उनको समझ में नहीं आया कि क्या पता नहीं, लेकिन इन माय ओपिनियन ही डजंट सीम टू बी राइट इन हिज थिंकिंग। क्यों बोलता हूँ, थायराइड आपके बदन का ही हिस्सा है ना। जी जी, थायराइड आपके बदन का ही पुर्जा है जी। जो बदन में जो भी बीमारियां है वो बीमारी थायराइड में उसी हिसाब से दिखाई है, क्योंकि थायराइड भाषा है थायराइडिज्म। नहीं, उसके आगे जो है, आप सुनिए, फिर आयुर्वेद में गया मैं, आयुर्वेद में 6-7 साल कराया, खैर वो 16 से 7 तो आ गया, 7 से नीचे नहीं जा सकता। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, वी गो टू होम्योपैथी, उसी आदमी ने फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया, बट वही हाल रहा, 7 से नीचे आता ही नहीं है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, फिर आपके लिए 7 इज करेक्ट, इट्स अ करेक्ट फिगर फॉर यू, देन इट विल कीप यू गोइंग विद 7। हाँ, हमें प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं, अगर प्रॉब्लम नहीं तो देखिए, होम्योपैथी जो है, मान लीजिए आज आप बात 2021 में हम पैदा हुए हैं और हम जीवित हैं और हम ये बात कर रहे हैं, मान लो शिवाजी महाराज के टाइम पैदा होते तो क्या करते थे, कौन सा थायराइड, कौन सा एनीमिया और कौन सा क्या था। बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं मैं। सही। कोई भी जानवर इंसान छोड़ा तो डॉक्टर के दवाखाने में खुद होके जाके इंजेक्शन ठोक के नहीं लेता है, जो पागलपन हम करते हैं। बात को समझिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, ये जो नॉर्मली हम लोग जो होम्योपैथिक की गोली खाते हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, वो नॉर्मली खाने का सही तरीका क्या है? अपने जबान के ऊपर रखनी चाहिए या अपनी जबान के नीचे लेके उसको लेना चाहिए? नहीं, ये जबान के ऊपर और नीचे की बात ही नहीं है, ये जो है आपकी प्राण शक्ति को स्टिमुलेट करने वाली चीज है, उसको अलग अलग तरीके एडमिनिस्टर करने के। कई बार ऐसा होता है जबान के ऊपर ले लो तो दैट इज द मोस्ट आइडियल थिंग। और एक बार आपकी जो प्राण, जस्ट द सॉफ्टवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जैसे मैंने अभी बोला आपको, द हार्डवेयर पार्ट एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट, ये आपके सॉफ्टवेयर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, और जब सॉफ्टवेयर आपका ठीक होता है तो हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाता है। आपको ऐसा जबान के ऊपर ले लो, नीचे ले लो, these are minor modalities which are not very relevant. Doesn't make a major difference at least. Yeah, not doesn't make a major difference at all. अच्छा सर, और ये दवाई लेने के बाद में जो प्री कंडीशंस, डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो आइडियली क्या रखने चाहिए, स्पेशली विद होम्योपैथिक मेडिसिन? होम्योपैथी का एक पॉइंट ऐसा है, उसको कोई बहुत ज्यादा बू वाली चीज से आप थोड़े दिनों तक दूर रहे। मान ले कच्चा प्याज खाते हैं तो कच्चे प्याज न खाएं, क्योंकि कच्चे प्याज में 2-3 घंटे मुंह में टेस्ट रहती है, बाद में आपका अनुभव होगा। हाँ जी, बराबर है। इसी तरीके कच्चा लहसुन, कोई पेन बाम लगाते हैं, अमृतांजन लगाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, इससे दूर रहें, क्योंकि ये मेडिसिन को डायरेक्ट एंटीडोट करता है। कुछ किताबें ऐसा बोलती हैं कि भाई आप कॉफी ना पिए, ये भी बात सही है, बहुत ज्यादा, बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट। आपको कॉफी पीने के बाद एक अलग तरीके की उत्तेजना आती है, इस तरीके की उत्तेजना ना आने दें, इतनी सी बात है। ओके 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 ओके। और किसी को कुछ पूछना है या विल गो इनटू द केसेस? सुनीता कुलकर्णी, आप म्यूट है। सुनीता कुलकर्णी म्यूट है। नहीं। हाँ, और कोई पूछेंगे? नहीं सर, अब आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा, आगे बढ़ते हैं और 1-2-3 चीजें, केसेस दिखाऊंगा। I'll share a wonderful case with you when a fellow came to me. उसको पैदाइशी से बाल ही नहीं उगे। He was born without any hair whatsoever on his body. डायरेक्ट कर रहा था। इस लड़के को देखिए, उसको बाल ही नहीं उगे।
Your screen share is paused. Screen sharing is paused. Yeah. This child was born without hair. उसको आया ही नहीं. बहुत लोगों को दिखाया, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट किया उसका. या Is it visible? Yeah, it's visible. Yeah. तो ये लड़का जो है, दिस फेलो वाज बोर्न विदाउट एनी हेयर. इसने इतने डॉक्टर लोगों को फेल किया कि हमने सोचा अभी हम भी फेल हो जाएंगे. ये हमने भी सोचा कि हम भी फेल हो जाएंगे. इसके लिए पहले इसमें इसका स्किन इसका हमने फिल्म नहीं लिए थे. तो ये लगभग 2 महीने के बाद जब बाल दिखाई दिए तब ये फिल्म लिया गया है. अभी इसकी जो चाबी हमने होम्योपैथी के हिसाब से जो उसका ड्रग मेडिसिन निकला, इट एक्टेड सो परफेक्टली दैट आई विल शो यू हिज फिल्म आफ्टर अबाउट 1 ईयर. ये 1 साल के बाद की फिल्म है. द सेम फेलो. तब तक ये 100% ठीक नहीं हुआ था, लेकिन ही वॉज क्योर्ड बाय अबाउट 80 to 90% जब ये फिल्म लिया गया. ही स्टिल अंडर ट्रीटमेंट, स्टिल गोइंग ऑन. उसको कुदरत बार्बर शॉप कभी देखा नहीं था. नाई की दुकान देखी नहीं थी इस बच्चे ने कभी भी. कोई वजह ही नहीं थी उसको. वो अभी 2-3 बार कटिंग करके आ चुका है. और एक केस आगे बढ़ते हैं, और एक केस दिखा दूं आपको. ये है अभी ये जो केस है, ये आगे की केस है. इसको बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज, डायबिटिक पार्किंसंस डिसीज. डायबिटीज की वजह से हुआ है. दिस इज पार्किंसंस डिसीज. No known cure in modern medicine. एलोपैथी में इसका कोई क्योर नहीं है. दवा केवल एक, उसको जो दवा चालू थी, दवाएं जो चालू थी, धीरे धीरे करके हमने बंद कर दिया. एलोपैथी वाली दवा धीरे धीरे करके बंद हो गई. अब इसको कोई दवा चालू नहीं है. अभी ये लगभग 7 के 8 महीने के बाद की फिल्म है. The disease is apparently completely gone. पंचवटीचा दवाखाना आहे ना आपला. Anybody has got any more questions to ask? Doctor, I have a question. Yeah. The question is, what is the fundamental principle of homeopathy? क्या principle क्या है? जैसे allopathy में there are that is, see, the principle is very set, has got a capacity to produce a particular syndrome in a person, has got a capacity to cure it in a naturally occurring phenomenon. मान लीजिए आपका और हमारा अनुभव ये है कि भाई प्याज काटते वक्त आंखों में से और नाक में से पानी आता है. ये सबका अनुभव है. तो ऐसे कुदरती तौर पे अगर नाक में से और आंख में से लगातार बीमारी की वजह से पानी आता हो, तो उसको ठीक करने वाली दवा लेकिन कुत्ता काटने के बाद जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी का बहुत ज्यादा डर. ग्लास में से पानी आप बेसिन में डाल रहे हैं, वो पानी की आवाज भी सहन नहीं कर पाते हैं.
उसकी वजह अभी तक मालूम नहीं। ऐसे पानी का डर किसी आदमी को है तो उसको क्योर करने वाली जो दवा है वो कुत्ते के लाल जो है सलाइवा है उससे बन के आएगी। तो जो चीज आपको कुदरत में दिखाई दे कि ये आपको बिगाड़ सकती है, वही आपको ठीक भी करती है। जो चीज आपको बिगाड़ेगी कुदरती तौर पे वो आपको ठीक ही करेगी। अरे कांटे से कांटा निकालने वाली बात है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। गो अहेड, गो अहेड। नहीं, तो ये जो मदर टिंचर आप बोलते हैं वो तो कॉमन है सब चीज के लिए। नहीं, मदर टिंचर इज लोकली एक्टिंग मेडिसिन। इट विल एक्ट ओनली ऑन द लंग्स, इट विल नॉट एक्ट लोकली एंटायरली ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोकल जो आपका जो मेलेडी है भाई, लंग्स में अगर कंजेशन है तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकल एक्शन के लिए है वो मदर टिंचर की जो बात हमने की। तो इट इज फॉर द लोकल एक्शन। और किसी को कुछ पूछना है? Anybody with any question? I am having a question. Yeah. Please go ahead. Yeah, actually, after COVID, is it there is a hair fall after COVID? Yeah, see, after COVID, if there is a hair fall, we have to deal with the situation that has caused the COVID in the first place. These are the after effects of a major debilitating disease, which can be cured very easily. And Carboage, incidentally, that जो medicine हमने आपको suggest किया है, that will even cure the effects of this very severe disease. So उसके जो after effects रहते हैं, these after effects will go away. Thank you. हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब, मैं आर.के. मोदी। हाँ, मोदी जी बोलिए। क्या हुआ, 2-3 साल पहले मैं काम करते करते एकदम मेरा सारा अंग एकदम बेकार हो गया जी। बट आफ्टर टेकिंग रेस्ट 5 मिनट्स इट बिकेम नॉर्मल। बट आफ्टर 1 डे अगेन द सेम अटैक वाज देयर। देन आई वेंट टू द डॉक्टर एंड MRI कराया उन्होंने एंड ही फाउंड दैट देयर वाज सम क्लॉगिंग इन ब्रेन के नस में क्लॉगिंग था। तो ये क्यों होता है और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात है, होम्योपैथी तब बना जब ये गैजेटरी आई नहीं। ये गैजेटरी गए आपके बचपन में था, नहीं था साहब, मोदी साहब। ये जब गैजेटरी है, होम्योपैथी का शास्त्र उसके पहले बना है, आयुर्वेद का शास्त्र उसके पहले से बना है। इसलिए हमारे जो साइंसेस है, आपके ब्लड प्रेशर या आपके MRI रिपोर्ट्स या आपके इसके ऊपर काम करते ही नहीं। हमारा जो देखने का तरीका है वो हम इन चीजों के ऊपर ध्यान, इसलिए हमारे होम्योपैथी में हम आपको मोस्टली कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं बोलते। खून तपास के लाओ, पेशाब तपास के लाओ, फोटो निकाल के लाओ, ये तक हमको उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका बॉडी एडिक्वेट हमको मैसेजेस दे रहा है कि कौन सी दवा दे दे। आपको समझ में आ रहा है? तो इन संकल्पनाओं के ऊपर हमारा चलता नहीं है। एलोपैथी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रो, एक मेरा दोस्त था तो उसके दवाखाने में नया ब्लड दिया तो पहले 8 दिनों तक हर एक पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव की दवा लेके जा रहा है। अभी बाद में पता चला कि वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, वो सबकी जो रीडिंग्स है वो ज्यादा बता रहा था। अब आप क्या कहें इसको, इस इंस्ट्रूमेंटेशन को क्या कहेंगे? सरदर्द, अभी एक बीमारी है सरदर्द की जिसको बोलते हैं माइग्रेन सरदर्द की बीमारी है। जी। अभी सरदर्द की बीमारी, उसमें अगर आप CT स्कैनिंग करेंगे ब्रेन का तो इट कम्स 100% नॉर्मल। ब्रेन का जो CT स्कैन है ये 100% नॉर्मल आता है। अब क्या करेंगे उसको आप? इसका मतलब 2 चीजें निकलती है, या तो पेशेंट झूठ बोल रहा है या मशीन झूठ बोल रहा है। सिंपल सी बात है। बात सही है कि नहीं जी? तो ना पेशेंट झूठ बोल रहा है ना वो मशीन झूठ बोल रहा है। उस मशीन को समझ में नहीं आ रहा है कि को क्या हुआ है। वो पेशेंट खुद बोल रहा है भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन मशीन नहीं बता रहा है। अब क्या करेंगे उसको? पेन किलर्स दे देंगे। पेन किलर्स आर अ वेरी डेंजरस एंटिटी, दे आर अ वेरी वेरी डेंजरस एंटिटी। पेन किलर्स, पेन बदन आपके अच्छाई के लिए पेन लाता है। बदन अगर पेन का इंपल्स लाता है तो इट इज टेलिंग यू टू क्योर द प्रॉब्लम्स इन सम वे। वो पेन का इंपल्स मारो मत उसको, इट्स मोर डेंजरस, इट इज रिलेटिवली मोर डेंजरस।
तो कुदरत के हिसाब से चले। कोई भी जानवर पेन किलर खाता नहीं है साहब। कौन सा जंगल का जानवर है, मुझे बोलो आप, डॉक्टर के दवाखाने में जाके पेन किलर का इंजेक्शन खाता हो? एक भी जानवर हमको बोलो। तो हमारी जिंदगी इन चीजों के बगैर कैसी चले ये देखना जरूरी है। वी मस्ट सी दैट आवर लाइफ इज डिवाइड ऑफ मेडिसिन। ये नहीं कि मैं हूं, इंसान हूं, जैसे गाड़ी के पंक्चर होते हैं, कल मैं भी बीमार पड़ सकता हूं, मुझे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन देयर शुड बी अ प्रूडेंट वे टू गो अहेड एंड क्योर इट। और किसी को कुछ पूछना है? May I ask one question, doctor? यस यस। N.K. Agarwal is my name. अच्छा, I have been, आपका नाम? अच्छा, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी। N.K. Agarwal. Yeah. I actually have been having blood pressure for the past 20-25 years. Right. And for that I have been taking medicine in the morning. Earlier it used to be only in the morning. Now it is morning as well as evening also. Yeah. Now, is there any medicine in homeopathy for that? That is exactly the point that I am stressing. ब्लड प्रेशर नाम के या इंस्ट्रूमेंट ने ब्लड प्रेशर दिखाया, उसको ब्लड प्रेशर क्या सिम्टम लाता है वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या सिम्टोमेटोलॉजी आती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपका सर दर्द होता है? I don't get absolutely any symptom. हाँ, absolutely तो no आपके लिए मैं वही बात बोल रहा हूँ। If you are not getting any symptom, it means that your body is trying to cover up something with rise in blood pressure. It is a compensatory mechanism. It is your constitution is trying to compensate. But the problem is that with that actually I got 2 attacks also. Yeah. And last time I had actually when a small blood clot was there, actually I had my blood pressure gone up to 180, 190, but I didn't feel anything about it. Exactly, so that they is said what it is silent blood pressure. वही बोल रहा हूँ, साइलेंट ब्लड प्रेशर जो रहते हैं, these are called as psychotic mechanism. हमारे एक होम्योपैथी में these are the symptoms of a disease which are usually concealed. The body tries to conceal it. लेकिन आपके कोई और भी आपको symptoms देते होंगे जो आपने शायद नोट नहीं किया होगा. Your body must be giving some indications कि आपको कुछ बीमारी है. Not because of this, but I have other problems like skin problem, skin itching problem, psoriasis is there, autoimmune hepatitis is there. मैं वही बोल रहा हूँ, आपका सोरियासिस को कंसीडर करना जरूरी है, सोरियासिस की मोडालिटीज कंसीडर करना जरूरी है। यही तो आपका बॉडी बोल रहा है और कि बीमारी है बोल के, and it is interpreted as blood pressure is only in a particular sector. So if I have to consult you, what is the information that you would need? See, I would require to in the information what has gone wrong in your life. आपके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपके मन को झंझोड़ दिया? कोई गुस्सा आया, कोई अपमान हुआ, कोई पैसे का मसला आया, कोई ऐसी बात हो गई जो आपको नागवार गुजरी, कोई गुजर गया, कोई बीमार पड़ गया। इन चीजों का डायरेक्ट असर आपके बदन के ऊपर है। So you mean to say that a write-up of some listing all these things exactly. will be helpful? Your mental state is to be studied as to why your body is not functioning so properly. The softer part of your constitution. Thank you. हाँ, और किसी को कुछ पूछना है भाई? It's a wonderful session. Because I'm not used to these kinds of teaching. You know, I've been teaching in the college. तो ये direct live रहता है हमारा. ये this is not. डॉक्टर आपका मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर ले लीजिए 94231 94231 74935। ये आ गया, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। डॉक्टर साहब एक सवाल है। कॉफी पीने को मना करते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर्स कॉफी पी सकते हैं करके बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल, डॉक्टर के साथ पिए तो बहुत ज्यादा बेहतर। कॉफी पिए तो डॉक्टर के साथ पिए, कॉफी वर्जित नहीं है। मैं आऊंगा आपके साथ कॉफी पीने को, फिर साथ में पीते हैं। Thank you very much. Sir, I would like to ask if any surgery like blockages in the heart or cataract can be avoided with homeopathy? Yes, indeed. Yes, indeed. Surgery, major surgery. In fact, surgery is an unnatural process. The nature has not permitted to you to cut your body. The nature has given you adequate measures to prevent all this.
हम कुदरती तौर पे काम करते हैं। अभी ये जो गैजेटरी आ गई, हार्ट में ब्लॉक, हार्ट में डालते, उससे ये देखा गया है कि कोई पेशेंट का भला नहीं है उसमें। बहुत लोग ऐसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। पीपल गो इनटू मेंटल स्टेट्स प्रॉब्लम्स, बीमारियां, मानसिक बीमारियां लगती है। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं आर.के. मोदी बोल रहा हूँ। मोदी साहब बोलिए। मई 1915 में हार्ट ब्लॉकेज का डिटेक्शन हुआ था। 4 और 5 100 है, 90, 80, 70 समथिंग लाइक दैट, एंड इट वाज इन एशियन हार्ट हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि आपको जल्दी करा लेना चाहिए। तो मैंने पूछा कितनी जल्दी है, लेकिन ठीक से जवाब नहीं दिया। बट उसके बाद मैंने जो देखा कि जिसने हार्ट का सर्जरी करवाया था उसके अदर बीमारियां जो है डेवलप हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं कराएंगे। मैंने वाइफ ने डिसीजन लिया, नाउ इट इज 6 years, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं वही कह रहा, देखिए एक बात आपको और हमको एक बात समझ लेनी चाहिए, बीमारी गई इसका मतलब आप मौत को टाल नहीं सकते हैं। इट इज इनएविटेबल डेथ। if you are born, it means one thing is guaranteed that you are going to die. अभी ये जो है मोडालिटीज है, भाई किस चीज से मरे वो बात, वो चर्चा का विषय है। भाई कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई कोरोना से मरा, कोई हार्ट के प्रॉब्लम से मरा, मौत आनी ही आनी है, इसमें आप रोक नहीं सकते। आपको जिंदगी जितनी जीने को मिली है उतनी बिना दवाई के और बिना बीमारी के कैसे आप जी सकते, इतना ही देखना हमारा फर्ज है। मौत तो आनी है, सबको है, उसमें तो हमको भी आनी है, आपको भी आनी है, वो सवाल नहीं है। या भाई क्या हार्ट के ये नई गैजेटरी आ गई है, उल्टा आपको अपाइज करके रखती है, ये कोई क्वालिटी लाइफ नहीं है। हार्ट के ऑपरेशंस के बाद क्वालिटी लाइफ नहीं रहती है। यू आर एक्सटेंडिंग, आर्टिफिशियली एक्सटेंडिंग योर लाइफ विच इज नॉट सो कन्वीनियंट, नॉट सो गुड। गैजेटरी के ऊपर आपको चलाना। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन। हाँ कहिए नवीन जी। हाँ, एक बात है कि ड्यू टू कोविड दिस सिचुएशन, कई बार हम लोग नींद करते हैं तो 2-2 घंटे की करते हैं, कभी 8 घंटे की, और कभी कभी सारी रात नहीं होती है नींद। एंड व्हाट हैपेंस इज आई कीप ऑक्युपाइड। कई बार होता है खाना खाया और नींद आ गई। तो ये इम्प्रॉपर और अन जो बैलेंस्ड व्यूज है, इज इट ओके कि इज इट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द? देखिए भाई, ये है कि जितनी नींद आपको लेना, देखिए आपको रिफ्रेशिंग होना चाहिए। भले आधे घंटे की नींद हो, इट शुड बी अ रिफ्रेशिंग स्लीप। आप 20 घंटे सोए और फिर भी नींद नहीं हुए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। और व्हाट डिपेंड्स, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेपोलियन कहते 15 मिनट सोता था तो उसको पूरी हो जाती थी नींद। अब मेरी बात करें तो मैं 12-15 घंटे भी सो लूं तो लगता है यार पूरी नहीं हुई है। राइट सर, ये अलग अलग बातें हैं। Okay, another question is about the intake of water, because after 65 वाटर इंटेक में फिर यूरिनेशन ये प्रॉब्लम होता है। तो उसका जो बैलेंस है, हम कहते हैं बैठ के पियो, आपको जितना जरूरत है उतनी प्यास आपको कुदरत खुद आपको एहसास करा रही है कि भाई इतना पीना चाहिए। इट शुड बी एडिक्वेट। कुछ लोग बहुत जरूरत से, देखिए एक बात है, आपको सिंपल बात बोलता हूँ, पानी आप जरूरत से ज्यादा पिए वो भी गलत है। यस, एक कैसे कि भाई जितना जरूरी है, कोई वो जैसे मैंने वो ये कहा ना, षड्रिपु, जिसका काम है, काम का मतलब है कि पानी समझो आपके प्रकृति के लिए अच्छा है, लेकिन अगर पानी एकदम 20 लीटर पी ले तो इट विल एक्ट एज पॉइजन। करेक्ट, ओके। किसी का क्वेश्चन है भाई, इधर परमानेंट क्योर फॉर द enlarged prostate glands? Prostate gland का enlargement is a natural process. It will keep on enlarging. ये जैसे है, it's an aging process. जैसे कैटरैक्ट आते हैं, वेरिकोज वेन्स होते हैं, ये एक उम्र के बाद आने वाले प्रॉब्लम है, उसको आप टाल नहीं, you can prevent it or you can cure it with this thing, keep it at bay. लेकिन ये आने हैं, इसको ज्यादा बॉदर ना करें भाई। ये तो क्या कहिए कि भाई आपका जैसे गाड़ी जितनी पुरानी होती है, टायर जितना पुराना होता है, पंचर ज्यादा निकालता है, बस यही बात समझिए कि ये पंचर्स निकल रहे हैं बस। आप जैसे 10-12 साल के जब होते हैं तब प्रकृति अलग रहती है, 80 साल में प्रकृति अलग रहती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन 80-year पर्सन टू लिव एज हेल्दी एज अ 10-year-old चाइल्ड। वो एजिंग प्रोसेस है। What is the consultation fee? Somebody asked me consultation fees. We work at a minimum possible fees. I'll tell you the fee structure also. Fee structure is we charge for 400 rupees as a first consultation with 600 rupees of medicine. Medicine के it's cost too much. तो ऐसा 1000 rupees we charge for the first time.
और उसके बाद फॉर 10 days वी चार्ज 500 rupees. वी डोंट ऑर्डर एनी इन्वेस्टिगेशन व्हाटसएवर. खून तपास के लाओ, पेशाब तपास के लाओ, फोटो लाओ, ये करो, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. योर मेडिसिन एंटायर थिंग, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं. इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आता है जब धीरे धीरे करके आपकी सब दवाइयां बंद हो जाती है, आप जो ले रहे उसको भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? सर, हाँ, इंसोम्निया के लिए कुछ मेडिसिन है क्या होम्योपैथी में? इंसोम्निया के लिए सच पूछो तो इंसोम्निया का रीजन देखना जरूरी है. नींद आता नहीं नाइट टाइम. आपको मैं वही बोलता हूँ, आपको देयर हैज गॉट टू बी उसका रीजन है. अगर नींद बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी है तो उसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही. लेकिन कैसा रहता है, उम्र के साथ नींद भी कम हो जाती है, सही बात है. एक्सरसाइज नहीं रहता है, कोई बॉदरेशन नहीं रहता है, कोई वर्क नहीं रहता, तो नींद कम हो जाती है. Okay. For retired people, it is a natural. Can hernia be cured without surgery? Yes, hernia can be cured without surgery, without fail. Hernia is a curable entity. Very much. I have seen in my own clinic, hernia is getting cured. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Yes. Anybody else? सर, नफीसा मैडम, नफीसा जी बोलिए. आपने जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की मेडिसिन दी है ना, वो कितनी क्वांटिटी में कैसे लेना है वो नहीं बताया. 10-20 ड्रॉप्स दिन में, यानी जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 20 ड्रॉप आधे 1-1 घंटे के ऊपर देते रहिए. 20 ड्रॉप्स 20 पानी में डाल के. पानी में. ओके. और ये कोई दूसरे भी ले सकते हैं क्या जिनको ऐसा लो फील हो रहा होगा? तो अगर सिम्टम नहीं तो देखिए, बीमारी है तो ट्रीट करेंगे, कोई बीमारी नहीं तो क्या ट्रीट करेंगे. आपको आपकी गाड़ी में खराबी है तभी गैरेज में लेके जाएंगे. हमारी गाड़ी में खराबी नहीं, कल परसों आएगी तो आज ही ट्रीट करने के लिए लेके जाए, ऐसा तो नहीं होता है. बीमारी है उसको ट्रीट किया जा सकता है. कोई बीमारी नहीं तो क्या ट्रीट करेंगे. थैंक यू. यस. एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? हाँ डॉक्टर साहब. हाँ, मैं PR गुप्ता. हाँ गुप्ता जी बोलिए. हाँ सर, हमने जो है 2016 में एक ब्लॉकेज था तो उसके लिए उन्होंने बैलूनिंग की थी जी. तो बैलूनिंग करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि मेरा BP जो है वो ऊपर वाला तो बढ़ जाता है. हाँ. और नीचे वाला जो है वो 60, 62, 65. अरे साहब, यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन. आप कोई ट्रीटमेंट ना करें. अरे यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल. आपका नीचे का ब्लड प्रेशर 60-62 अगर दिखा रहा है, ऊपर का भले कितना भी ऊपर जाने दे, उसकी फिक्र छोड़ दे बिल्कुल. जस्ट गो हैप्पी. आपको कुदरत ने बहुत अच्छा, कुदरत का आशीर्वाद है आपके ऊपर, उसको कुछ ना करें. आपकी शुभकामनाएं भी हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. आप उसको कुछ ना करें, ऊपर वाला ऊपर जाने दीजिए. नीचे का अगर नॉर्मल रहता है तो यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन. धन्यवाद. धन्यवाद सर. डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं. जी जी. Can hernia be cured? Doctor, where can be? I can be contacted on the mobile that I have given to you. मेरा क्या है, मेरी बहन बॉम्बे में, मिसेस कुलकर्णी मेरी बहन है, बड़ी बहन. ये मेरे जो लंबे कान दिखाई दे रहे हैं उसने किए हैं. तो मैं अच्छा. आप मुझसे ये कर सकते हैं कॉन्टेक्ट. डॉक्टर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर आपका स्टमक का ब्लोटिंग होता है तो उसके लिए देखना पड़ेगा. वी विल हैव टू सर्च व्हाई इट इज हैपनिंग. सिर्फ इसके लिए और नो में नहीं आंसर दिया जा सकता. और नवीन जी बोलिए. Suppose the pressure is low and sugar also is low, is it a good sign? Because lower level तो ठीक रहता है, सिर्फ blood pressure का wonderfully good sign. The nature is protecting you. The nature is protecting. At the same time, the pulse normally starts from 65, 75. But while I go out and come back, it's 110. Then I take rest, then it reduces gradually. So that function is happening. You are in a perfect state of health in the given condition, given circumstances. You are in the best possible situation. Don't take any treatment. बहुत अच्छा चल रहा है आपका. Thank you for your blessing, sir. Thank you, sir. Thank you. डॉक्टर, आयुर्वेदा में नाड़ी चेक करके बीमारी के रूट कॉज निकालते हैं. What do you do in homeopathy to find out the root cause of that? आयुर्वेद का साइंस है. it has got 4000 years of research. उसके पीछे 4000 साल का रिसर्च है.
उनका शास्त्र अलग है, वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, उनके भी कोर्स बहुत माइंड बॉगलिंग है। आयुर्वेद के साइंस के बारे में तो पूछो ही मत, इतना खूबसूरत साइंस है, लेकिन उनका देखने का तरीका अलग है, नजरिया अलग है। जैसे आप और हम हिंदी में बोलते हैं, हम जापानीज और चाइनीज में बात नहीं करते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग, हमारी लैंग्वेज अलग, देखने का तरीका नजरिया अलग अलग है, उतनी सी बात है। वो भी बहुत खूबसूरत नहीं, I want to know how do you arrive at recognizing a disease? देखिए, आपके सिम्टम्स जो है उसकी मोडालिटीज बोलते हैं। अभी क्या कहे, अभी ये तो क्या है, 2 मिनट में बोलने वाली बात नहीं है। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, द लॉट ऑफ थिंकिंग हैज गॉन इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू बी स्टडीड। ये प्रकृति को आधा घंटा सामने बिठा के आपको आपका इंटरोगेशन करना पड़ता है। I have to make you sit for about half an hour to understand what has gone wrong. तो ये 2 मिनट में नहीं समझा सकते, लेकिन क्यों मैंने तो, और किसी को कुछ। डॉक्टर, आप लोग जो है कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट जाता है तो आपके पास कोई फाइल नहीं मिलती। जनरली मैंने देखा है वो सिर्फ बात करते हैं। फाइल पेशेंट्स को नहीं देते, हम फाइल पेशेंट्स को नहीं देते। We don't आपके पास रिकॉर्ड रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाता हूँ वो हमेशा सिम्टम सुनते हैं और उसके हिसाब से इलाज लिखते हैं। Your doctor is doing the correct thing. What about kidney stones? Can you tell me, Raju? Dr. Anil? Kidney stone? हाँ, yeah. किडनी स्टोन्स इज द, वो किडनी की लैंग्वेज, किडनी की भाषा किडनी स्टोन्स। किडनी को जुकाम नहीं होगा या जुलाब नहीं होंगे। जो बीमारी आपके पूरे बदन में है वो किडनी में किडनी स्टोन्स के हिसाब से ही दिखाई देगी, वो भी क्यूरेबल है। विदाउट ऑपरेशन आर दे क्योर्स? यस, इट इज क्यूरेबल विदाउट ऑपरेशन, क्योंकि उसको एलोपैथी में चूंकि उसको कोई दवा नहीं है, इसके लिए दे आस्क यू टू टेक आउट द स्टोन। बट इन होम्योपैथी अपना जो बॉडी का मैकेनिज्म है, वी मेक दैट स्टोन टू गेट डिसॉल्व्ड एंड टू गो अवे। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस that should be followed. Okay. We will take a last question, please. Any last question? Yes. Please go ahead. Any last question? डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक कहाँ है? नासिक. I am stationed at Nasik. I've got 2 clinics. One in morning time I sit in the clinic in Panchvati. If you are aware of geography of Nasik, so I am stationed in the morning time at Panchvati clinic. और शाम के वक्त मेरा क्लिनिक है नासिक रोड near the railway station. It is about, the difference between the 2 clinics about 10-12 kilometers apart. And thirdly, I am a professor and a head of the department in a medical college. So I teach in a medical college. अभी तो फिलहाल यही आपके जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं, ऐसे बच्चों के साथ इसी तरीके से बात होती है। तो ठीक है, और कुछ सवाल ना हो तो let us call it a day. Thank you very much, doctor. Yes, indeed. We had an excellent session. Yes. Thank you very much. On behalf of My Retired Foundation, we extend a very, very sincere thanks to you. And look forward to being with you. I am so privileged and so honored to have talked to you all. Thank you. I'm sincerely, very sincere. I'm feeling so privilleged. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Educative session. Thank you so much. Thank you, doctor. Bye. बहुत अच्छा लगा, बधाई हो। Thank you. धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Saab. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. फोन नंबर दे दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।